Staying with a company for 16, 17 years, sometimes a lot of people started telling it's not right, you will not be able to grow. But I have actually proved them wrong. मतलब मैं बोल सकती हूँ कि मेरा वो डिसीजन कि मैं ज्योति में 16 साल रही was very right. जब मैं इंटरव्यू के लिए गई तो मैंने उनको पूछा कि आपने why are you specifically taking only women? So he told me three things which I never forget. He said that women is more loyal. If you respect her and give her what she deserves, she will do more than 100% for you. And the third thing was, when she is getting respect in her family because she is working, she'll again give more than what she can deliver. 2007 was my, I would say, turning point of my career. When I spearheaded IPO at the age of 32, that was a dream come true. The day when, he called me and he said कि we are going for an IPO and you have to spearhead this project. तो मैंने कहा सर मुझे तो IPO का मीनिंग ही नहीं पता, सिर्फ इतना ही पता है कि IPO का फुल फॉर्म क्या है. COVID happened and now the question mark whether I should not. My earlier company anyways was forcing me मत जाओ रुक जाओ, and now COVID है so business is zero. Now what do? So I called up the promoters of VIP and asked them, do you want me to come? Whether you'll be able to afford me or you want to postpone the decision. It is an absolute pleasure, ma'am, to have you with us. अभी थोड़ी देर पहले जब ऑफिस में आप अपनी जर्नी शेयर कर रहे थे, आई वाज सो फैसिनेटेड. मतलब मैं चाहूंगी कि आप हमारे लिसनर्स के साथ भी वो जर्नी शेयर करें. लाइक जैसे आपने ज्योति लैब के साथ में अपना करियर शुरू किया, व्हेन यू जॉइंड एज एन असिस्टेंट मैनेजर, द टॉप लाइन वाज हार्डली 20 करोड़, बट over the span of 16 years, आपने multiple key role play किए, making it a listed company and with a turnover, with a top line of 1800 crores. I mean, it's not a joke. उसके बाद में आपने ग्रीव्स कॉटन ज्वाइन किया, वहाँ पे भी आपने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बिजनेस बिल्ड करने में हेल्प किया. देन यू मूव टू VIP, वहाँ तो आपने ज्वाइन ही एज अ CFO किया, एंड देन यू रोज टू मैनेजिंग डायरेक्टर. आई मीन it's literally superb journey. I mean, trajectory across various roles and industries. So can you just walk us through this journey, and उसमें भी कुछ ऐसे की roles या decision जिसने आपके करियर को शेप करने में बहुत हेल्प करी. Yeah, please. Thanks for calling me, and it's my pleasure to come here and talk about my journey. And yes. So today when I see back, I feel yes, I have done few things which went right, or maybe my decisions were right. Yeah. Like staying with a company for 16, 17 years, sometimes a lot of people started telling it's not right, you will not be able to grow. But I have actually proved them wrong. मतलब मैं बोल सकती हूँ कि मेरा वो डिसीजन कि मैं ज्योति में 16 साल रही was very right. So मैंने जब स्टार्ट किया था एज असिस्टेंट मैनेजर, हमारा एक छोटा सा ऑफिस था जहाँ पे सिर्फ 4 लोग थे. और जब मैंने छोड़ा तो हमारी खुद की बिल्डिंग थी ज्योति लैब्स की. तो वो जर्नी जो देखी, आई थिंक नॉट मेनी पीपल विल गेट दैट एक्सपीरियंस टू सी दैट जर्नी. सो आई एक्चुअली ओ माई करियर टू दैट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उन्होंने मुझे चांस दिया. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप में कैपेबिलिटी होती है लेकिन आपको चांस नहीं मिलता. सही बात. मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि सचिन तेंदुलकर तो इंडिया में बहुत होंगे, लेकिन क्योंकि सचिन तेंदुलकर को चांस मिला वो वहां पहुंचे जहां वो हैं. उसी तरह से बिकॉज ज्योति लैब्स ने मुझे चांस दिया, मैं यहाँ हूँ. सो द क्रेडिट गोज टू देम. एंड यस, आई स्टार्टेड एज असिस्टेंट मैनेजर. 4 ही लोग थे. उन्होंने 3-4 CAs को लिया उस वक्त, बिकॉज कंपनी बहुत फास्ट ग्रो कर रही थी, तो उन्हें पता नहीं था क्या करना है. बट 4 CA वुमेन CAs को उन्होंने लिया. Specifically because this company was very very positive for women. So जब मैं इंटरव्यू के लिए गई तो मैंने उनको पूछा कि आपने why are you specifically taking only women? So he told me 3 things which I never forget. He said that women is more loyal. Okay, if you respect her and give her what she deserves, she will do more than 100% for you. And the third thing was, when she is getting respect in her family because she is working, she'll again give more than what she can deliver. So ये 3 चीजें जो उन्होंने मुझे बोली थी वो मैं आज भी नहीं भूलती. और वही उसी वजह से आई थिंक मुझे एनकरेजमेंट मिलता रहा कि मैं और बेटर करूँ और बेटर करूँ.
और उन्होंने मुझे बहुत सारे चांस दिए. लाइक 2000 में मैंने ज्वाइन किया. फिर 2001 में हमने ERP इम्प्लीमेंट किया. दैट वाज अ बिग एक्सपीरियंस. 2002 में, सो हर साल में मैंने एक नया प्रोजेक्ट किया वहां पे. उसके बाद मैंने मतलब वी हैड 2 प्राइवेट इक्विटी राउंड्स, CDC, CLSA, which I was part of the team. Main team. Yeah, and then 2007 was my, I would say, turning point of my career when I spearheaded IPO at the age of 32. That was a dream come true. And the day when he called me and he said कि we are going for an IPO and you have to spearhead this project. तो मैंने कहा सर मुझे तो IPO का मीनिंग भी नहीं पता, सिर्फ इतना ही पता है कि IPO का फुल फॉर्म क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो मैं कैसे करूँगी. So he told me only one thing, that we know you can do it, and if you go wrong, we are here to support. So I think this sentence is very important. So if you have a backing, if you have a mentor who can say this, that if you do a mistake, we are there. I think that helped. And it was a successful IPO. I got an award from the Institute of Chartered Accountant for this. To be able to do such a big thing at a young age. Obviously. But that was the turning point, and I would say I have not looked back after that. So my confidence level went multifold after this thing. Then we did a QIP, raised funds again for the company because we wanted to do an acquisition. Then we did an acquisition, which is again one of its kind, where Indian company went ahead and bought German stake of Henkel India business. Again, a big thing. It was, so we acquired a company which was our own size. So you can imagine the massive task. And then we merged these 2 companies together. Okay. So the market cap of the company from 400 crore went to 4,000 crore in 2 years. Pretty awesome. So it was again something which was fascinating, and again it improved my confidence level. So at every level, when you do better things, you keep growing. I think that gives you more and more confidence. So that happened, and then came a point where it was like, what next? And for a finance professional, you always have a dream that come se come CFO to banungi, right? Now here what happened was that one of the promoter director was a CFO. तो मेरा road block हो गया. अभी vice president के आगे मेरा जाने का chance नहीं दिख रहा था. That is when I decided to move on. Okay, I understood. And that was the correct point to move on. Yeah. But अगर मुझे वहाँ पे CFO designation मिलती तो शायद मैं नहीं छोड़ती. But maybe God had something better for me. Better for you, yeah. And that's what happened. So I then left and joined Greece. And did electric mobility acquisition for them, and that is today the company surviving on that. Obviously, that company is completely on that. And again, then came this opportunity at VIP where it was a larger role. It was CFO plus legal secretarial and IT. So then I got encouraged that okay, it's a bigger role, let me. And VIP, it's the brand recall is such a great thing. So I thought, let me go there. Okay. And, so I accepted the offer in January. Was supposed to join in April. COVID happened. So you imagine, COVID happened, and now a question mark whether I should not. My earlier company anyways was forcing me, mat jao, ruk jao. And now COVID hai, so business is zero. Now what do? So I called up the promoters of VIP and asked them, do you want me to come? Whether you'll be able to afford me or you want to postpone the decision. So they told me, no, we are eagerly waiting for you, please come. During COVID time? Yes. I mean, when the layoffs were at its So I'm telling you, it's a travel company. Forget about any other company. It's a travel company, business was zero and fixed cost was 40 crore a month. And in that situation, I joined. 6th April, I joined through a online. Okay, join. So it's a classic case. Farewell was online on a Zoom. And joining was online on a Zoom. And it happened. And it's a classic case. After 108 days, I have seen my office. 100. But this 108 days, lot of work happened.
because this my immediate task was that we have a 40 crore of fixed cost on a monthly basis, so we need a 300 crore of debt to survive for 1 year, and how this 40 crore can be reduced to 25 crores. So this was the immediate assignment given to me when I joined, and everything happened in the first 90 days. Okay. So I had a So cost 300. cutting was like again in the form So a lot of innovative ideas. So few things were like negotiate with the landlords for rent reduction or waiver for 6 months, 9 months. We also did went to employees to say, can you take a 50% cut? Can you take like senior people 50%, lower end Okay. people with 20% the position. positions. So these kind of innovative ideas we thought and implemented everything in the first 90 days. It went well. And it went well. And that is where the confidence of promoters increased. And that's why I got the position what I got. Because what I did in first 90 days. But I can never forget that 90 days without meeting the people who will help me to work, we got everything done. So yeah, online also lots can happen. Yeah, so that's my journey, and a few important points is first one was, as I said, doing the successful IPO. Yeah. I think that was something which still stays with me forever. Yeah, because that was for the first time and it started with कि मुझे इसका सिर्फ full form पता पता है है. और कुछ भी नहीं पता. And the compliment which we got from the merchant banker was this was the smoothest IPO we've ever had. Yeah. And that compliment also, was हाँ, obviously it helps you to grow further in that particular area and then at times कुछ नहीं पता रहना भी बहुत अच्छा होता है because आप zero से शुरू करते हो and you'll be more focused, right? तो आपको तो आता ही नहीं है तो आप ABCD से चालू करोगे. True. तो सब कुछ आप ध्यान दोगे, फोकस भी ज्यादा करोगे ना. मुझे आता है तो फिर आपका थोड़ा लेथार्जी भी होता है ना कि मुझे आता है. You take it granted. हाँ, अब क्या होता है जब हम बाजू में ऑफिस होता है तो जाने के लिए सोचते हैं ठीक है तो पास नहीं है. पास नहीं है. बट अगर दूर होगा तो प्लान करोगे. Yes, So it's the मुझे same thing. जाना ही है. True. मतलब आई थिंक आपको ये जर्नी में जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स आपने किया है, परसिव किया है, उसका नॉलेज बहुत काम आया. लेट इट बी मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो फॉर आईपीओ या फिर क्यूआईपीज एंड ऑल आगे जो आपने किया, कॉस्ट कटिंग बोल दो. आई थिंक जो भी नॉलेज आपने गेन किया ड्यूरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी बहुत काम आया है. Definitely. सो आई जस्ट वांट टू नो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करियर चूज करना, इज इट लाइक आपका खुद का डिसीजन था या घर में ऑलरेडी कोई सीए है जिसको देख के आपने डिसाइड किया कि मुझे तो सीए So करना you'll be surprised to know it just happened because it was the cheapest course in the country at that time. है. At now also, huh? Now It's the also, cheapest course. Yeah. And my family was not in a position to afford any other education, but I had to do something in my life which was there, and I took up. So first, I always had a wish to become a doctor, Okay. but when I heard that the fees is like ranging from 5 lakhs to 50 lakhs, I decided to pursue CA because that was the cheapest course. But yeah, I loved it, and actually the course has helped me to do a lot. I'm happy that I chose this field. Your parents also agree for this because 3 decades back, I doubt. So I can't tell you like the story if you. So I was from a very very conservative family, Marwadi conservative family, where education, even graduation was like बहुत कम लोग थे graduates जब मैंने किया था, और मुझे बोला गया था जिस दिन ग्रेजुएशन खत्म होगा उस दिन शादी हो जाएगी. बट आई वॉज लाइक वेरी वेरी पर्टिकुलर, मुझे तो लाइफ में कुछ करना ही है. तो मैंने बहुत झगड़ा वगड़ा करके सीए किया है. एंड मतलब मैंने खाना पीना छोड़ दिया था. मैंने जब डैडी ने बोला कि तुमको शादी करनी है ग्रेजुएशन के बाद, जो भी करना है ससुराल जाके करना, मैंने फिर खाना पीना छोड़ Graduation के, के बाद आपने सीए क्योंकि तब फाउंडेशन नहीं था, वो फर्स्ट ईयर था. सो आई एम टॉकिंग अबाउट 94. सो आई ग्रेजुएटेड इन 94 एंड देन आई वांटेड टू डू सीए, एंड फाउंडेशन था वो फर्स्ट ईयर था, तो हमें इतना नॉलेज भी नहीं था. और मेरे घर में दूर दूर तक ना तो कोई सीए था ना कोई और पढ़े लिखे लोग थे. सो मुझे कोई मेंटोर नहीं था, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था. उस वक्त हमारा जो फेवरेट गाइड है आज, गूगल बाबा भी नहीं थे. नहीं थे actually. तो हमें कुछ नहीं था. फोन
नहीं था. पेजर आई बिलीव शायद So yellow pages थी. I have told this in one of my interview because yellow pages helped me to choose my husband. सीरियसली Yeah. So मतलब आज की जो जमाने के लोग हैं उनको येलो पेज नहीं पता, बट हमारे जमाने में येलो पेज थे. मोबाइल फोन्स नहीं थे, लैंडलाइंस हुआ करती थी. तो हाँ, सीए करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था बिकॉज आई वाज नॉट अलाउड. टू द एक्सटेंट 12th के बाद मुझे बोला गया था कि अगर कॉलेज करोगे तो कोएड कॉलेज में नहीं जा सकते, आपको गर्ल्स कॉलेज में जाना है. और बॉम्बे में गर्ल्स कॉलेज कितने थे? हार्डली. सो आई वाज इन सराफ कॉलेज. आई वाज नॉट अलाउड फॉर अ कोएड कॉलेज. तो मैंने सराफ कॉलेज में पढ़ाई की. मैं सब मानती थी जो बोलते थे, बस पढ़ने दो. यहाँ तक कि मैंने स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया था जब मेरे डैड ने फाइनली हाँ किया कि ओके तुम सीए परस्यू कर सकते हो, तो उन्होंने मुझसे स्टैम्प पेपर पे लिखवा के लिया था कि मैं 3 साल में सीए करूंगी. जिस दिन मेरी फाइनल एग्जाम होगी उस दिन मैं, आप बोलोगे उससे शादी करूंगी. ये मैंने लिख के दिया था जब उन्होंने एग्री की. और स्टैम्प पेपर पे. एंड मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, बट वो दिखाया था उन्होंने. मतलब यू कैन अंडरस्टैंड द एग्जैक्टली मतलब मेंटल स्टेटस. हाँ मतलब वो तो ऐसा था फिर कि मेरे पास में ऑप्शन नहीं है, आई जस्ट हैव टू डू इट. करेक्ट. करो या मरो वाली चीज मतलब बट मुझे करना था, तो मतलब करना था. सो आई वाज वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि मुझे लाइफ में कुछ तो करना है. और ये मुझे बचपन से आ गया था जब मैं 10-12 साल की थी. द रीजन भी मैंने देखा था मारवाड़ी फैमिली में बॉयज एंड गर्ल्स में जो डिफरेंस होता है ना, मतलब बॉयज को बहुत वैल्यू करते हैं, गर्ल्स को नहीं करते. तो मुझे था कि भैया देखना, गर्ल ही तुम्हारा भला करेगी. So बचपन से था. everybody will be having you know they will be Yeah. having So all those people used to that time say कि ये wrong decision है, आप उसको पढ़ने दे रहे हो, अभी ये भाग जाएगी या जो भी होगा. All of those people now, for all their guidance in their family, they come to me. But the other thing which I like always feel कि मैं सीए बन गई मेरी फैमिली में, उसके बाद नेक्स्ट सीए कितने साल बाद बना पता है आपको? 21 years के बाद. why so बिकॉज वही है, एनकरेजमेंट टू गर्ल्स एजुकेशन इज सो मच लेस. आपके बनने के बाद में नहीं, ये 21 आपने साल. आपने शादी भी उन्हीं आपके पेरेंट्स के पसंद के लड़के से की, हाँ, अरेंज मैरिज थी. तो फिर क्यों नहीं बनने दिया? नहीं मतलब फिर लड़कियों को भी नहीं करना encourage ना. किया? अच्छा See, Actually, मतलब हर एक प्रॉब्लम इज में विद वो द, passion हाँ मतलब गर्ल्स को भी होना चाहिए ना कि भाई मैं आगे बढ़ूँ या मैं करूँ. बिना बिना खुद के तो मैं passion लेकिन 21 years के बाद नेक्स्ट ये बनी है मेरी फैमिली. I believe अब ऐसा कुछ नहीं होगा. कि अब तो मतलब things have changed. Change and even girls have started Yeah, they know the importance of education. education. अभी तो मतलब गर्ल्स वॉइसेस ज्यादा है हर एग्जाम में. आप देख लो द Yes, नंबर ऑफ true. पीपल हु आर इन द मेरिट में गर्ल्स ज्यादा And है. not only in chartered accountants, Every in field. every field we can see that Yeah. difference. So we can see now, and like India has undergone a good transformation from where it was in 90s to where it is today. Today. The only problem which I see is mindset of the women as well, which is still has to undergo a vast development. और वो एक प्रॉब्लम है अभी. जब तक वो अपने माइंडसेट को ब्रेक नहीं कर सकती, जो वो एक बैरियर उसने खुद ने लगा के रखा है, जब तक वो उसे ब्रेक नहीं कर तो सकती वो बाहर नहीं आ पाई. वो बाकियों से कैसे फाइट करेगी? वो खुद से ही फाइट करते तो रहेंगे. मैं यही बोलूँ कि पहले तो खुद के अंदर से वो बाहर आ जाओ, फिर तो सब कुछ हो जाएगा. बस कैपेबिलिटी है. एंड यू आर लाइव एग्जांपल फॉर दैट. अब तो फैमिली में जब लड़कियां भी एजुकेशन के लिए आपकी जा रही होंगी आगे, तो दे मस्ट बी गिविंग यू एन एग्जांपल कि सी आपको देख के हमारी बेटी भी आगे बढ़ रही है. तो आपके लिए द टॉप मोस्ट पोजीशन वाज मैनेजिंग डायरेक्टर. वो जब आपको एज ए एमडी अपॉइंट किया गया, हाउ डज दैट मोमेंट फील? और स्पेशली उसके नेक्स्ट डे व्हेन यू एंटर्ड द ऑफिस, यू नो, एज ए एमडी ऑफ अ कंपनी, तो वो पर्टिकुलर रोल ने आपके विजन को कैसे चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू अ कंपनी? Okay. So I can't explain like in few words the मतलब the I don't know the emotion. So much was happening and it was not easy for me to take this call also because suddenly, and it all happened very sudden. Like suddenly I was called and told that we want you to become the MD. So I said I need 2 to 3 days to think.
And then I said, I'll not come to office for next 2 days. Let me just think Have my over own. it, decide, discuss with my family, and then I will take a call. And after 2 days, then over the phone, I said, okay, I'm ready to take this. Then the board meeting happened. It happened on a 15th August. So मैं छुट्टी में थी और 15th August को board meeting हुई. The announcement happened. You were not there. No, 16th announcement means online होता है ना. Okay. तो 5 हाँ. days. Right. And then 16th August, I entered the Entered. office, and yeah, it was a divine feeling, and the whole room was filled with flowers. So I have so many friends, family connected for so long. Like, so I always believe in having relationship with, and connect. So I have people whom I know for 20 years, 25 years. So there was a flood of flowers in the room. And yeah, it was a divine cloud feeling. nine. Yes. Even the family was very happy, and yeah, and but it was a tough task because when I got this business, it was definitely in some grave stage, and yeah, so my mind started working. What next? What all we need to do? So we had to do a 360-degree change. So as soon as I joined, I spent 20 days in the market. Okay, because we were losing market share. So I wanted to understand कि VIP इतनी अच्छी ब्रांड है, लेकिन उसका मार्केट शेयर क्यों गिर रहा है, और वो मुझे कहाँ से पता चलेगा? वो मुझे कंज्यूमर से ही पता चलेगा, ऑफिस में बैठ के तो पता नहीं चलेगा. So you spent 20 days. In fact, I spent 30 days in the market in 20 cities. So in first 30 days of being a MD, I was on the road for 20 cities to understand. Okay, so I didn't go as an MD, और तब तक लोगों को पता भी नहीं था इतना मार्केट में ना कि नहीं ये MD है. तो मैं एज अ कंज्यूमर जाके लोगों से बात किया, शॉपकीपर से बात की, कंज्यूमर से बात की. मतलब खाली हमारे शॉप्स नहीं कर मार्केट, मतलब सब जगह से बात करके फाइनली ये रियलाइज किया कि ब्रांड रिकॉल इज फैंटास्टिक. मतलब बच्चा बच्चा VIP को जानता है, ठीक है, लेकिन खरीदता नहीं है. वो क्यों नहीं खरीद रहा है? क्योंकि उनको लगता है कि इसमें न्यूनेस नहीं है, इसके कलर ओल्ड हो गए हैं. VIP मतलब ओल्ड लोगों के लिए है. तो ये सब जब फीडबैक आया तो मैं उसको कोलेट करके ऑफिस आई. एंड फर्स्ट थिंग व्हिच आई सेड, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ प्रोडक्ट पे पहले काम करना है. और कंज्यूमर हमें टाइम नहीं दे रहा है. उसका मतलब है कंज्यूमर मेरी शॉप में पहले जा रहा है. जब उसको बैग खरीदना है तो वो VIP के स्टोर पे जा रहा था. तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी ये थी कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे लाइफ इसकी मतलब उसको लाइव बनाएं. Actually, इसको revamp करें. The Revamp. product is So gonna be first same. thing, ब्रांड है, अभी हमें ऐसा कुछ करना है जिससे कंज्यूमर उसको देखते ही ले लें. तो मैंने ब्रांड और प्रोडक्ट पे काम किया, और VIP की ब्रांड रिकॉल इतनी अच्छी थी ना, मैंने कहा दूसरा कुछ करने की जरूरत है, VIP को ही हम डिवाइड करें. और फिर मैंने काफी कुछ किया उसके अराउंड. जापानीज डिजाइनर को लाया, प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए. तो आप देखोगे तो 2-2.5 साल के पहले बहुत सारा VIP में प्रोडक्ट लॉन्चेस हुआ था, और उसकी स्टोरी मैंने चेंज की. मैंने पिंक कलर भी लॉन्च किया, मैंने मैंगो कलर भी लॉन्च किया. सो पहले क्या हो रहा था, VIP में सिर्फ ग्रे ब्लू Monotonous color. तो एकदम मैंने ऐसे senior इसको वाले लाइफ color. दी. और या आई थिंक द वर्क इज गोइंग ऑन, तो काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया. कॉन्फिडेंट, लाइक जैसा अभी आपने बोला कि आपको 20 डेज, लाइक 20 सिटीज में आप 30 डेज यू वर ऑन द रोड, ऑन द शॉप्स, जस्ट टू नो एग्जैक्टली हो क्या रहा है. तो ऐसे टफ मोमेंट्स आपके लिए बहुत रहे होंगे, मतलब वेयर एज अ लीडर आपके लिए भी और आपकी टीम के लिए भी. सो मुझे ये समझना है कि जस्ट बिकॉज यू आर अ विमेन, आपने कौन से एडिशनल जो एक्स्ट्रा वाले स्ट्रगल आपने करे हैं जस्ट बिकॉज यू आर अ विमेन. बहुत है, मतलब थोड़े नहीं होते. और मतलब हम बोलते ही हैं कि अभी वक्त बदल गया है, बट वुमेन के लिए वक्त ऐसा कुछ बदला नहीं है. क्या ओके, थोड़ा बदल गया है, बट आज भी मैन को वुमेन को रिपोर्ट नहीं करना. दे फील डिग्रेडेड. दे आर नॉट टेलिंग यू ऑन द फेस, बट उनके माइंड में वो है, और वो फेस पे दिखता है.
तो ये जो चीज जो दिखती थी ना, मतलब उसको कैसे सॉल्व करना है, और ये मेरे को अर्ली करियर में ही पता चल गया था कि men doesn't want to report to a women boss। और इसके लिए मैंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी वो ये थी कि वो men खुद आके मेरे को बोले कि मेरे को आपके साथ काम करना है, ऐसा मैं कुछ करूं। और उसके लिए मैंने ये किया कि गिव क्रेडिट टू दैट पर्सन, फर्स्ट थिंग। द सेकंड स्ट्रैटेजी इज मेक हिम फील दैट यू आर एडिंग वैल्यू टू हिज और हिज करियर। वो अपने आप आ जाएगा। ये दो चीज मैंने स्टार्टिंग में ही, मतलब ये ज्योति डेज में मुझे पता चल गया था कि मैन का प्रॉब्लम है। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने स्टार्टिंग से अपनाई। मेरे से 10-15 साल ज्यादा उम्र के लोगों ने भी मुझे रिपोर्ट किया और हैप्पीली रिपोर्ट किया। Happily report किया। It does matter because it is not simple for a man उसका ego। And when I told you that I was in the market for 20 days and 30 days, 20 places, I didn't go with men around. Okay. I didn't tell anybody. It was a surprise visit. Okay. और क्योंकि अगर मैं लोगों को बोल के जाऊंगी तो पूरा स्टेज होगा ना। True. ये बात तो रियल fact है। फैक्ट तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। और लोगों ने सोचा था विमेन है तो क्या ही करेगी, मार्केट में जाएगी। मतलब बेसिकली आपको क्रेडिट देना ये आपको ज्यादा बेहतर लगा। क्रेडिट दो और साथ में लेके काम कर लो। क्रेडिट दो, उनको सिखाओ, तो उनको लगेगा कि अगर मैं मैम के साथ काम करूंगा तो मैं भी आगे जा सकता हूँ। और ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप आएगा। मुझे ओपनली बोलना नहीं है, बट वो उनके माइंड में अपने आप ही आ जाएगा। मैं उस तरह से मैंने अपने आप को स्ट्रेटेजाइज और चेंज किया। क्योंकि एक वक्त था जब बहुत अट्रिशन हो रहा था, तब मुझे ये पता चला, मैंने एचआर को बोला एग्जिट इंटरव्यू करने, उन्होंने किया तो ये पता चला कि बिकॉज इफ वी हैव टू रिपोर्ट टू अ वुमन वी डोंट वांट टू। बट आई थिंक वो मैंने मतलब काफी जल्दी समझ गई थी मैं, तो मैंने उसको प्रॉब्लम जल्दी समझ आ गया आपको। हाँ, तो मैं उसका सोल्यूशन, और फिर वो मेरे हैबिट में ही हो गया ना। See, once I decided कि मुझे ये स्ट्रैटेजी अपनानी है, फिर वो मेरी हैबिट हो गई। So that was part and parcel of my leadership style. सही है। It is actually tough. आपने आपके करियर के स्पैन में मतलब बहुत सारे बिजनेस साइकिल्स देखे हैं। लाइक स्टार्टिंग विथ .com बबल, देन फाइनेंशियल क्राइसिस, वो भी आपने देखा, देन कोविड एरा, पैंडेमिक वाला एरा, एंड पोस्ट कोविड इवन जिसमें अभी हम लोग हैं। तो ड्यूरिंग ऑल दिस बिजनेस साइकिल्स, मतलब व्हेन यू स्टार्टेड दैट टाइम लीडरशिप वाज वेरी हायरार्कियल, लाइक डिसीजन मेकिंग एक कंपैरेटिवली स्लो भी रहती थी, हायरार्कियल रहती थी। बट नाउअडेज वन मैन शो होती थी। So my time हाँ. में it was like only promoters will decide कि क्या exactly. But वहाँ nowadays से things have changed. Like because of digital transformation, business trajectory change हो रही है, business का landscape change हो रहा है, decision making change हो रही है, even remote working का culture बढ़ गया है, AI के tools आ गए हैं, work का automation हो रहा है. So over this period of time, आपने आपके leadership skills को कैसे evolve किया? जो पहले आपने देखा और जो अब आप देख रहे हो, सो दोनों में ड्रास्टिक चेंज है। सो आपने आपके लीडरशिप स्किल्स को कैसे इवॉल्व किया? So I think the person who can change with time will survive. Well, survive. So this is something which was always there in my mind. And I also believe that women has that more power to change. Okay. True. So I always say that only women know how to change. She stays in one house, okay, and then suddenly her house has changed. Now that is no more your house. You have to go to a new house. Imagine that transition. Tell any man to do that. It is impossible. So therefore, I always say that God has given you something very different and very creative thing, which you have to use it wisely. And which is very important. तो आप तो वैसे ही versatile हो यार, आप मल्टीटास्क करो, राइट? आप versatile हो, आप टाइम के साथ चेंज हो सकते हो। तो फिर लीडरशिप में क्या है, मतलब आपको अपने आप को प्री रीड करना है, इन द सेंस कि आपको पता है कि अब नेक्स्ट क्या आ रहा है। तो आई ऑलवेज बिलीव इन लर्निंग कि एवरी डे हैज टू बी अ लर्निंग डे। द डे यू स्टॉप लर्निंग यू आर फिनिश्ड। तो आज भी मैं सोचती हूँ कि हर दिन एक नई चीज सीखूं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे तो कुछ चीजें जो मैं सीख रही थी, मैंने इम्पोर्टेंट चीज थी कि
मेरे को सोलर नहीं पता, ओके, सो कैन आई लर्न समथिंग ऑन सोलर टुडे? True. सो दिस इज हाउ आई डू. सो आई ऑलवेज वांट टू कीप लर्निंग एंड आई थिंक जिसको भी लाइफ में आगे जाना है उसको ये कभी नहीं छोड़ना कि मैं लर्न, एवरी डे हैज टू बी अ लर्निंग डे. एंड पीपल हु फील दैट मुझे सब आता है, वहीं फिनिश हो गए. it's over. Yeah, true. सो आई थिंक वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और मैंने अपने आप को टाइम के साथ चेंज करती गई. आई बिकम लाइक आई ऑलवेज बिलीव इन IT एज अ बिग टूल. जैसे कि मैं बता रही थी कि ज्योति में मैंने 2001 में ERP इम्प्लीमेंट किया था. सो आई ऑलवेज टैक्स सभी. सो आई ऑलवेज बिलीव इन यूजिंग मोर एंड मोर IT एंड दैट हेल्प. आपको IT यूज करना है, बट जो आपके टीममेट्स है, मतलब सो कॉल्ड पुरुष प्रजाति, उनको वो डिसीजन एक्सेप्टेबल नहीं है. तो वो सिचुएशन को आपने कैसे मैनेज किया? बिकॉज दे आर लिटिल बिट रिजिड. मतलब आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट हम जितने फ्लेक्सिबल है उतने मुझे नहीं समझ आते हैं. सो मैनी टाइम्स एज आई टोल्ड यू ना, मेरी ये फिलॉसफी जो मैंने फॉलो की है, जो मुझे करवाना है ना वो मैं उनके मुंह से बुलवाती हूँ. तो ये मैं ऐसे सिनेरियोस प्रेजेंट टेलिंग इधर ऐसे सिनेरियो प्रेजेंट करो कि एक जो आपको बुलवाना है वो उनके मुंह से आ जाए. आई थिंक दैट हेल्प्स. अगर मैं थोपूंगी, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं बोलूंगी कि तुम्हें ऐसे ही करना है तो कभी होगा ही नहीं. वो ही सामने से आके बोलेंगे कि मैम ऐसे करें और वो वही होगा जो मैं चाहती हूँ. तो सिनेरियोस स्टेप से बिल्ड करो. ब्रेनस्टॉर्मिंग जब करते हैं ना तो वो अपने आप ही वो आंसर आ जाता है. So few of the things, that is how I used to do. I never said do like this. ऐसे ही होगा. No. It was decided here. हाँ, but बोला उन्होंने ऐसा brainstorming में अपने आप निकल के आता है. When we discuss, deliberate. So that is where I give importance to the other side more. So for you, brainstorming and sitting with the team members, discussing with them, Discussing and then finally decision हम group as a group लिया है हमने. तो उसकी वैल्यू होगी, वो उसको उसके साथ रहेंगे बिकॉज उन्होंने तो डिसाइड किया ना. दिस इज समथिंग जो बहुत ही शायद अंडर वैल्यूड है, बट दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. इंस्टेड ऑफ गिविंग डिसीजन, आप उनके साथ में बैठ के लो, सो दैट ओनरशिप उनके अंदर भी आएगी कि यस, ये डिसीजन हमने लिया है तो हमें इसके साथ ही रहना है. एग्जैक्टली. दिस इज certainly मुझे आपसे ट्रेनिंग लेने की जरूरत है. I need to take training from you. अभी बहुत सी बार ऐसी भी सिचुएशन रही होगी ना where you are the only women in the room. तो मतलब आप एंटर कर रहे हो, the room is full of men and you are the only women. तो वो सिचुएशन में आपने खुद को कैसे असर्ट किया है? See, एक अच्छी चीज हुई कि जब मैं ज्योति में थी तो ऐसी सिचुएशन आई नहीं. तो मेरे अर्ली करियर में ऐसी सिचुएशन आई नहीं कि आई एम द ओनली वुमेन इन द रूम, बिकॉज as I told, they respected women and therefore in our HO we had 100% women. So only promoter was man. Rest all with In office, even in our Ujala factories, there was 100% women employment because he wanted to generate this women. So he decided of a women empowerment in 80s when nobody was thinking. Exactly. Even when women was not thinking themselves कि हमको हमारे लिए ऐसा कुछ करने की जरूरत है. तो वहाँ पे मुझे वो प्रॉब्लम नहीं आई. बट हाँ, उसके बाद तो anywhere I go, but हाँ, whenever I go for any meetings outside, very few women in the room. Sometimes only me in the room. But I was used to it ना. मतलब मैंने जब करियर चूज किया या मैंने सोचा कि मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में, तो मैं तो उसके लिए प्रिपेयर ही थी. तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे लिए वो यूनिक सिचुएशन थी. मुझे पता था ऐसा होने ही वाला है. उन्हीं वाला है. You were pretty much prepared also. एंड बहुत सारी लीडरशिप टीम में और कोई वुमेन होती ही नहीं थी. लाइक ना ग्रेस में थी, ना VIP में थी. बाद में जब मैं MD बनी तो आई एडेड वुमेन इन माय टीम, लीडरशिप टीम. अदरवाइज कोई नहीं था, मैं अकेली रहती थी. ओके, मेरे को आपके लिए कॉमन हो गया था. बट आई ऑलवेज बिलीव कि मैं अपने आप को ऐसे नहीं देखती कि मैं वुमेन हूँ. मैं एक लीडर हूँ. आई एम सिटिंग विद अ ग्रुप ऑफ लीडर्स. एंड मैं आई ऑलवेज बिलीव कि लोगों को ये मत सोचो कि मैं बिकॉज मैं वुमेन हूँ मुझे ये चाहिए. मुझे नहीं चाहिए. बिकॉज मैं केपेबल हूँ मुझे ये चाहिए. एग्जैक्टली. एंड मैं आज भी सब वुमेन्स को यही बोलती हूँ कि डोंट लाइक प्ले ऑन द विक्टिम कार्ड या वुमेन कार्ड. जस्ट प्रूव ना दैट यू आर बेटर देन हिम. ट्रू. एंड देन बी प्राउड अबाउट इट. अगेन बात वही है, पहले खुद से फाइट कर लो,
हमको क्या चाहिए पहले वो Correct. समझ लो, एंड देन यू आर एबल टू प्रेजेंट योरसेल्फ नॉट एज अ विक्टिम बट एज अ लीडर. Correct. ठीक है, दिस इज व्हाट आई You डिजर्व. have to prove that you are better than your counterpart. Yeah, that's all. That's your job is done. एंड रेस्ट तो जो आपने बोला विद द डिस्कशन एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. सीरियसली गूज़बम्प्स नाउ, सीरियसली. आई मीन ठीक है, ये तो सारी बातें हुई सर्विस को लेके. अब आपने एंटरप्रेन्योरशिप के वर्ल्ड में कदम रखा है विद नितारा एडवाइजर्स, तो क्या आप ये इसके बारे में मुझे कुछ बताइए, और इसके थ्रू आप किस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं उससे भी बताइए. Okay. So, मतलब सबसे पहले why Nitara? So I always had this in my mind कि around my 50s I will quit my job Okay, and it start was something decided. of, yeah, it was. So I have this habit of having my next dream, or I would say next plan, as soon as I finish my first one. So जब मैं CFO बनी तो मैंने सोचा मुझे CEO बनना है. जब CEO बनी तो छोड़ के अपना इंटरव्यू. So मैं मेरा नेक्स्ट ड्रीम या जो भी मुझे करना है वो मैं जिस दिन पहले वाला खत्म करती हूँ उस दिन डिसाइड करती हूँ. ये मैंने शुरू से ही फॉलो किया है. एंड मैं सबको बोलती हूँ कि ड्रीम बिग, ड्रीम अहेड ऑफ टाइम सो दैट यू विल बी एबल टू फुलफिल. तो उसी में जर्नी में मेरा ये था कि 3-4 साल में MD रहूंगी और उसके बाद छोड़ के आई हैव टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन. तो उसी जर्नी में You started thinking of having something of your own. And yes, now Nitara is born, just not even a month old, Yeah. and it's a baby, which Nitara means Nitu, which is Your me, plus Tara, which is a star. So this is how Nitara is born. And the meaning of Nitara is grounded, which matches with my personality. And that's the name. And here I want to help smaller businesses, medium-sized businesses grow. So I have seen the business cycles for 27 years. And what I want to do is, like for example, a promoter or a founder is stuck at 10 crores and they don't know how to bridge this gap from 10 to 100 crores. I want to be part of that journey. You want to handhold them, Handhold your them. experience Yes. with your knowledge. So help them to grow from 10 to 100. Mhm. In this journey, whenever they need funding, I can help them. And post that, when they want to go for an IPO, I also handhold them for this. Get ready for an IPO. So IPO readiness. Mhm. So this is what I want to do with Nitara Advisors. Okay. And the tagline is vision to value. तो मैं बोलती हूँ सपना आप देखो पूरा मैं करूँ. पूरा हम करेंगे. सही बात. So this is Okay. the big. So, first of all, many congratulations Thank you. for your this newly born baby. I mean, it's not even a month old, and I'm damn sure with your knowledge, with your experience, जो भी आपने लिया है with this 3 decades, ये नितारा को एक अलग लेवल लेके जाएगा. And nowadays, अक्सर startups, even छोटे businesses भी फंडिंग सिक्योर करने में बहुत स्ट्रगल करते हैं. आई मीन, I don't know what is the exact reason behind it, but they struggle a lot. So, what are the common mistakes they make, and how they can prepare themselves in a way that investors ही उनके पास सामने से आए instead of they going, door to door. So few things are like you start thinking about raising money very early. Okay, I think that is the biggest mistake. थोड़ा business को build करो ना. मतलब suddenly when the business is too small, it is not an investable. So मैं हमेशा से बोलती हूँ शादी के पहले लड़की को तैयार करना पड़ता है, राइट? तो आपकी जो मैरिज हम करने वाले हैं यार, उसका मतलब है कि एक बिजनेस जब किसी दूसरे के हाथ में जाएगा या फंडिंग ले रहे हैं, इट इज लाइक अ मैरिज. नाउ यू हैव टू गेट योर ब्राइड रेडी, विच मीन्स योर बिजनेस हैज टू बी रेडी. उसके लिए आपको बिजनेस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा और इन्वेस्टेबल बनाना पड़ेगा. एंड यू शुड हैव अ नेक्स्ट 3 to 5 year प्लान कि आप क्या करोगे. खाली ये बोलना कि मुझे 10 करोड़ चाहिए, मुझे 20 करोड़ चाहिए, इट डजंट वर्क. And today's investor is so smart. Also, there are so many ideas in the market. Okay, मतलब आइडिया की तो कोई कमी नहीं है. कभी कभी मुझे लगता है इंडिया इज फुल ऑफ इनोवेटर्स. अभी लास्ट फ्यू डेज से मैं लोगों से मिल रही हूँ, मतलब इतना ब्रेन है लोगों में. बट
lot of people are innovators, but they don't have commercial acumen. तो उनको ये नहीं पता है कि मेरे पास ये आइडिया है, मैं इसको business कैसे बनाऊं. Commercialize कैसे करूं? तो वो वहां पे I am there, so I can help people, those people who have this lack of commercial knowledge. And another thing which I keep saying is always have people with you who have like आपके पास innovation है, तो आप किसी के साथ जुड़ जाओ जिसके पास commercial sense है. Together you can build big. So I think those are few things which people have to keep in mind. दूसरी चीज है कि one individual cannot have everything. Okay. Other thing is 10 करोड़ या 100 करोड़ की कंपनी का 100% होना versus 1000 करोड़ की कंपनी का 50% होना. What is better? So always think of dividing it so that you can build a bigger empire. So don't fear of having less share, but think like this ना, 1000 कंपनी का मेरे पास 50% है, मतलब मैं 500 करोड़ का मालिक हूँ, वर्सेस 100 करोड़ की कंपनी जिसके आप 100%. तो those kind of wise decisions, but I understand a lot of people don't understand finance, so they need somebody who can advise, help, stand with them when they need help. I think that's important. So this is the business, like the gap which you find कि ठीक है, मतलब इसे फुलफिल करने की जरूरत है, बिकॉज कहीं ना कहीं आइडिया रहने से बिजनेस नहीं होता है, आइडिया को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने से उसको, और आइडिया भले अच्छा हो लेकिन उसको अच्छे तरह से कंज्यूमर को प्रेजेंट भी करना पड़ेगा. बिजनेस आइडियाज तो बहुत है, बट ऑल्सो थिंक अबाउट अ बिजनेस विच कैन सॉल्व अ करंट प्रॉब्लम. इफ a problem is solved, that business will do well. अगर आप Me Too करोगे, मतलब ऑलरेडी एक ब्रांड है, सिमिलरली कुछ लॉन्च कर दोगे, तो उसकी कोई एडिशनल वैल्यू आपको नहीं मिलने वाली. वैल्यू जनरेशन, वैल्यू क्रिएट आपको, तो वैल्यू जो क्रिएट करनी है वो नीश में होगी, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग में होगी. सो द बिजनेस आइडिया जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ बिग पिक्चर, दे डू वेल. एक्चुअली वी हैव मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ दोस काइंड्स. यस, एंड इवन जहाँ वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना, पीपल कम अलोंग, वो अपने आप आ जाते हैं कि ठीक है, वी विल हेल्प यू. और जहाँ पे वो एडमेंसी है कि नहीं इसको ऐसे ही लेके जाना है, तो वहाँ कहीं ना कहीं टीम नहीं बन पाती है. एंड यहाँ पे सबसे बड़ा स्ट्रगल आ जाता है कि अब इसे आगे कैसे लेके जाए, फंडिंग का स्ट्रगल. सम और दी अदर वे, या आई कैन को रिलेट विद दिस थॉट. ये चीजें हैं. लुकिंग एट इंडियाज फ्यूचर, आपको क्या लगता है हमें कौन सी एरिया पर फोकस करना चाहिए सो दैट हम डोमेस्टिक वे में भी, डोमेस्टिक लेवल पे भी हम ग्रो करें और इंटरनेशनली ग्लोबली भी हम ग्रो करें. So I would say that look at these problem solving. Okay, अभी पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज क्या है? So for example, water is going to be a future problem. So do something around it. So all the social economic problems of the world are going to be similar, whether be it India or whether be it global. So think on ideas which can solve these problems. Like today, millet. Millet is suddenly becoming, a household name. Everybody is Gen Z word is millet. I know. So therefore, now these millets were always available, right? But अब उसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं, तो उसके अराउंड अभी सब लोग अगर मिलेट लॉन्च कर लेंगे तो क्या होगा? People are doing it. I'm telling you. But उसमें अगर आप कुछ innovation लाओगे, something different which is actually solving the problem of the people today, it will work. So you have to think about a problem solving business idea. Then only you can have sustainable economic growth. Sustainable economic Otherwise it is gonna And be tough. India is a vast country. I don't think we need to depend on outside for it. I always believe India is a large consumer base. India's Okay, so India's future is bright. and it is in the hand of proper, the top leaders are supporting this thought process. Now the only problem is the war which is currently going on. But I still believe that that's now going to end. How long? But Anyways, it is not impacting us at that See, it is huge not level. impacting at the people or
that way as a war, but it is definitely impacting the No. economic Yes. condition. Yes. Yes, it is true. Yeah. But some or the other way, we should feel blessed. Yeah, because of top, Yeah. top leadership, we are Yes, still safe hands. exactly. We are talking about IPL instead of war. I mean, it's a fact. Until I am surprised कि IPL हो भी रहा है. हाँ, it's a big surprise because हम इतने safe hands में है ना. I always feel blessed. Like I'm born and brought up in India. क्योंकि कहीं ना कहीं आज मतलब globally also people are betting on India. कि नहीं इंडिया बहुत आगे जाने वाला है. सो जैसा आपने बोला कहीं ना कहीं इट्स अ फैक्ट कि हमें दूसरों पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है. हम सेल्फ सस्टेनेबल बन सकते हैं और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट हमको mindset, yes. लाना है. And business with a great idea which can solve an existing consumer problem, I think will be a hit. True. Short and simple. आप यू आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एट ग्रो फिनटेक कंपनी एंड आप भी ये चीज को अग्री करोगे बिकॉज ऑफ ऑल दिस फिनटेक लोगों का जो इन्वेस्टमेंट का पैटर्न है बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ है. सो आप इसे कैसे देखते हैं और इसका फ्यूचर आपको क्या लगता है? So अगर आप देखोगे maybe 5 years back the number of people who were investing in equity was still very low. So today also I think only 20% of the people are into the equity investing. Now there is long way to go, and so here there are two things. One, some people say that it's gambling, but I don't think it is gambling, it's investing. And today also there is a huge room for more companies to come and help common man invest and earn. In that wealth generation journey, basically. The only problem is when people think that this is the only bread and butter for me, then it is a problem. So this should be looked at as an investment only idea. It's a second income generation. It should not become a primary income generation. The time when it becomes a primary income generation, then it is a problem. Because then you will forget everything else and only do look at the market, Finode, सारी so चीजें. then you tend to make bigger mistakes and invest more and all of that. I think you should have a balanced approach, and it's a wealth generation tool. You should look this as a wealth generation tool, a second income generator, not the primary. And especially the Young generation. young generation should focus on this. Yes. See, this is not a tool for your Primary primary income. This is a tool for your wealth generation. You should focus on investing. Start cutting off the expenses, whatever additional expenses they are doing on. So much. Yeah, there is a list. Like today's generation is not into saving; they are only into spending. That's another problem. Showing off. Yeah, the biggest problem. So, आज की ये फास्ट चेंजिंग बिजनेस वर्ल्ड में मतलब आपके अकॉर्डिंग बिजनेस को किस चीज पर फोकस करना चाहिए? बिकॉज टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एवरी सेकेंड. सो इस सिचुएशन में बिजनेसेस को किस चीज पे फोकस करना चाहिए ताकि वो इवॉल्विंग लैंडस्केप के साथ में खुद को इवॉल्व कर सके? So I always feel that they have to think next 5 years. So think ahead of times. So we have a clear example of Kodak. What happened? Right? Nokia for that matter. Nokia. So companies who don't think ahead of time, I think will not be able to survive. So in your business, what next should keep happening. You have to spend some time and energy on this. All the But if you cannot spend, and so when I say time and energy, it means you can have a third party innovate for you. But company need to think about it every year in their strategy. Don't just think next year's strategy. Think next 5 year strategy. I think it is very important in today's environment when things sometimes change like very drastic. And I have seen in our business also, sometimes the things have changed very fast and the companies who have not been able to cope up have lost. I guess there are so many examples. the example आपने दिया, like when you were on the road for like just knowing the reason and you got to know it is just a basic thing like color को लेके भी इतना कुछ हो सकता है. So it's actually a good thing. मतलब the top leadership should actually focus on मतलब if they cannot spend time on what new
be done, they should hire or they should outsource this work. But yes, ये चीज होनी Keep thinking. keep thinking what next. This is actually important. And all of this is not like a science. Because if you think like a consumer, always put yourself in the consumer mind. Na? Like if I am a consumer, what will I need after this? How do I think? All of that will give you the answer. बेसिकली मतलब दिस इज द सबसे शॉर्टकट वाला है हाँ, कि खुद ही अपने आप को कंज्यूमर बना हुए थिंक कि आपको आप ये चीज को कहाँ तक के लेके जा सकते हो एंड यदि आपका जवाब आपको खुद का जवाब ही आ रहा है कि 1 साल 2 साल तक के देन यू शुड स्टार्ट इमीडिएटली थिंकिंग कि व्हाट नेक्स्ट बिकॉज अदरवाइज इट इज गोना बी रियली टफ फॉर द बिजनेसेस टू सर्वाइव लुकिंग एट द चेंजेस correct. happening in the AI world or for that matter in our society also. ट्रू यदि कोई यंग प्रोफेशनल को ये लीडरशिप में जाना हो तो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे सो दैट मतलब उनका करियर भी प्रॉपरली इवॉल्व हो एंड उनके रैंक्स भी ऐसे ऊपर जाए So one thing is that please focus on your work, okay? Forget about the hierarchy, promotion. When you start thinking all of this very early, na, it's a problem. So जैसे कृष्ण भगवान ने भी कहा था, कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो. So कर्म करते जाओ, फोकस ऑन दैट फोकस ऑन दैट. अपने आप होता है यार, मतलब एक बार नहीं होगा. अगर अच्छा काम करोगे तो दूसरों को दिखेगा. मैं हमेशा से ऐसे बोलती हूँ कि ऐसा काम करो कि लोगों को दिखे. और लोगों को दिखेगा ना, तो प्रमोशन मिलेगा ही. कहाँ जाएगा? So this is very important. And above this, one more thing I put: confidence. Confidence on yourself. Okay, you should have a confidence that I am the best. Okay? मैं अपने बच्चों को यही सिखाती थी कि जब एग्जाम देने जा रहे हो, रूम के अंदर जा रहे हो ना, ये सोच के जाना कि आई एम द बेस्ट. सी मैनिफेस्टेशन इज सो इम्पोर्टेंट. जो आप मैनिफेस्ट करोगे ना वही होता है. तो आप अगर सोच रहे हो कि मैं बेस्ट हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ, तो होगा. तो बस अपने आप पे विश्वास रखो, कर्म करते जाओ, फल अपने आप आएगा. Maybe आजकल की जनरेशन आई बिलीव मैनिफेस्टेशन पे तो बिलीव करती है बट व्हेन इट कम्स टू उन सबको शॉर्टकट चाहिए. हाँ, तो वैसे नहीं होता. उसको मतलब वो नहीं हुआ तो वो दूसरों के केस में हो गया मतलब वो जो 3 इडियट का डायलॉग नहीं खुद को फेल आई नो. फ्रेंड को प्रैंक आ गई, ऐसे कैसे हो गया तो वो वाली चीज हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट हो जाते हैं मतलब व्हाटएवर दे आर थिंकिंग वो उसी से डाइवर्ट हो जाते हैं तो सो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने आप पे फोकस करो. मतलब अगर आप दूसरे लोगों पे फोकस करोगे, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो ये प्रॉब्लम है. एंड हमेशा अपने आप पे विश्वास करना जरूरी है. और अगर दूसरा है कि आप अपने आप को अंदर से भी देखो ना कि आप में कमी क्या है. अगर आपका नहीं हो रहा है तो कुछ तो एक कमी होगी जो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी. आइडेंटिफाई अगर अगर आप करनी है हाँ, और अगर आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो आप वही है, ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज करो. घर पे बैठो, अपनी फैमिली के साथ बैठो. फ्रेंड अच्छा फैमिली के साथ नहीं करना कोई बात नहीं, फ्रेंड्स के साथ कर लो. मतलब जहां भी आप कंफर्टेबल हो. बट आप में क्या प्रॉब्लम है वो आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे तो ही सॉल्व करोगे. ठीक है ना. कोई भी बीमारी होती है तो हम जब तक उसका डायग्नोस नहीं होता इट इज अ बिग प्रॉब्लम. बट डायग्नोस हो गया तो राइट डॉक्टर के पास जाके उसका सोल्यूशन. एंड देयरफॉर लुक इनटू योरसेल्फ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपका क्यों नहीं हो रहा. लाइक सीए में भी कई लोग अटक जाते, इतने स्मार्ट होते हैं. हाँ, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है लेकिन वो उनको समझ में नहीं आती. जो आपने मुझे पहले बोला ना आई थिंक इसे बहुत बेहतर तरीके से हम को रिलेट कर सकते हैं कि हम कुछ चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं जो हमें नहीं लेना चाहिए. करेक्ट है. एंड द मोमेंट आपका फर्स्ट टारगेट क्लोज हुआ नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए. नेक्स्ट टारगेट इमीडिएटली आपका पिक्चर में आ जाना चाहिए. एंड ड्रीम बिग. एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है ना कि ये चीजें रही ना तो हार्डली कोई बच्चा है जो ऊपर नहीं जाएगा या खुद को अर्जेंट नहीं जा पाएगा. लेकिन आप ये भी सोचो कि आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप करोगे, प्लस आप अपने आप को डेवलप करो ना. एग्जैक्टली मतलब कुछ रॉकेट साइंस तो लर्निंग एंड लर्निंग कर्व इज वांटेड. राइट ऑलवेज मतलब इसमें तो कोई दौमत नहीं है. एंड आई कीप सेइंग ना, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन यार. मतलब कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे तो कंफर्ट ही रहोगे, कंफर्टेबल रहो तो ऊपर नहीं जा पाओगे. मतलब चूज कंफर्ट और चूज ग्रोथ. That's on you. So come out of your comfort zone.
ये तो हुई यंग प्रोफेशनल की बात। मुझे बताइए, यदि आपको आपके यंगर सेल्फ को स्टार्टेड योर करियर एक डिसीजन, एक एडवाइस देना रहता, तो वो क्या रहता? So I started networking slightly late than what I should have. So मैं सोचती हूँ कि मैंने नेटवर्किंग लेट चालू की। आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट है आज की दुनिया में। तो इफ आई वर in my 30s, then I would have suggested myself to start networking early. Networking is important. And nowadays we are having so many tools, it's not mandatory to have. मतलब आज के ज़माने में तो आपके पास इंस्टा है, आपके पास लिंक्डइन है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप मतलब आई एम सीइंग सम पीपल लाइक माय किड्स देयर हैव 5,000 फॉलोअर्स, यू इमेजिन। तो मतलब आज की दुनिया में तो आपको ऑप्शंस इतने हैं, इतने इवेंट हो रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आपको टाइम निकाल के नेटवर्किंग स्टार्ट करना है। ये ब्रांड बिल्डिंग पे आप बिलीव करते हैं? ओके, फॉर दैट नेटवर्किंग इज इम्पोर्टेंट। या विदाउट नेटवर्किंग एंड यार मतलब जो दिखता है वो बिकता है, तो आपको अपने आप को बेचना है। उसके लिए आपको अपनी ब्रांड बनाना है। इफ यू आर इन सर्विस, तो आपको अपने आप को बेचना ही है। सर्विस हो या एंटरप्रेनर हो, एंटरप्रेनर को तो हर दिन ही बेचना है। बिजनेस में तो आपने एक बार जॉब ले ली तो आपको, राइट, और अगर एंटरप्रेनर हो तो आपको हर दिन मैंडेट लेना है। आई थिंक वो माइंडसेट रहता है कि मुझे सेल करना है, बट सर्विस में आने के बाद में द पर्सन इज इन कंफर्ट जोन। तो कि ठीक है, मैं इसके छत्र छाया में हूं, मतलब मेरा तो हो ही जाएगा। बट देखो ये भी एक रॉन्ग नोशन है। आई नो बट अगर आपको वही है कंप्लेसेंसी, हाँ एग्जैक्टली, कंफर्ट जोन, मतलब अगर आपको ग्रो करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे तो नहीं होगा। अब अगर मैं वहाँ ज्योति में बैठी रहती ये सोच के कि ठीक है अभी वाइस प्रेसिडेंट तो बन गई, सैलरी मिल रही है, कोई टेंशन नहीं है, बैठे रहो, तो वही होती ना, वही रहती। सही बात है। सो वही है कंफर्ट जोन से बाहर आना। बहुत लोगों ने बोला कि इट्स अ रॉन्ग डिसीजन, 17 साल के बाद कौन ही जॉब छोड़ता है, अभी फिर से स्टार्ट करोगे, फिर से अपने आप को प्रूव करोगे। बट यस, इफ यू ये क्लॉजेस जो है ये हर फेज में ही मिलते हैं। हर फेज में मिलेंगे। जब बच्चे होने वाले थे तो अब जॉब छोड़ दो क्योंकि संभाल नहीं पाओगे, घर है, ये है, तो वो तो आएंगे, लेकिन अपने को अपना डिसीजन लेना है। इट्स बेटर कि जो टाइम है उसे यूटिलाइज करो, नेटवर्किंग पे फोकस करो, अपने ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस करो। डजंट मैटर वेदर यू आर इनटू बिजनेस और यू आर इन सर्विस, क्योंकि बिजनेस वाले का कहीं ना कहीं माइंडसेट होता है कि मेरा प्रोडक्ट सबको पता चले, बट doesn't matter if you are in service, you should have your own brand. See, service में you never know, right? Today you lose your job, if you have your brand, it will be so quick. कोविड के टाइम पे तो इतना क्विक होगा ना आपको जॉब मिलना। अगर आपने अपनी ब्रांड क्रिएट ही नहीं किया, आपने नेटवर्किंग किया ही नहीं है, तो आपको बहुत डिफिकल्ट होगा। राइट, ब्रांड बिल्डिंग। सो दिस इज द एडवाइस लाइक जो आप देना चाहोगे। Thanks. Thank you so much, ma'am. Seriously, it was, I mean, honor to have you with us. Oh, my pleasure. Yeah, and thank you for sharing your, this journey with us. Certainly, it is going to benefit a lot of people in their career. Now, ma'am, I just want a rapid fire question, just a single word answer, okay? Okay. Yeah. Coffee or tea? Nothing. Oh, seriously? You are like I've not me. tasted in my life. Oh my goodness, amazing. Book or binge watch? Binge watching. Seriously, I thought आप बुक बोलोगे। हाँ जी, कौन सी रिसेंट वेब सीरीज देखी है? Giant. ओह खतरनाक। स्टेज और ऑफिस? Stage. I love dancing. So that's my stress buster. I love dancing and cooking. Wow, I was not at all aware about this. Dancing is like, wow. Money or impact? Impact. Always. Nidara advisors. क्या बात है। लीडरशिप और मैनेजमेंट? Management. ऑलवेज। So manage करोगे तो leadership आता है। एग्जैक्टली, वो जो ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड सारी चीजें हैं। कूल। टीम वर्क और इंडिपेंडेंस? Teamwork. टीम वर्क ऑलवेज। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।